Hello and welcome to Vidya Bridge. I am Ritika Bharadwaj, your personality development coach. And in today's session, I'm going to teach you how you can develop yourself as an individual and improve your personality. We will also talk about how we can do effective communication. So, before going ahead, I'm going to keep it bilingual, Hindi and English both, so that everyone can understand. तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे एक कोटेशन लिखी है। पर्सनल डेवलपमेंट इज़ अ मेजर टाइम सेवर। द बेटर यू बिकम, द लेस टाइम यू टेक टू अचीव योर गोल्स। what does it mean basically? This is very simple to understand. पर्सनल डेवलपमेंट एक मेजर टाइम सेवर है। जितनी जल्दी आप इसे सीख लेंगे उतना ही कम टाइम आपको लगेगा अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। So this is what personality development says. Now let's jump to the next slide and see what we have in our bucket. Now let's know what is communication and what is the importance of the communication when we talk about personal development or personal enhancement. So, communication is the process of sending and receiving messages through verbal and non-verbal means. We all do communications, right? But actually में communication होता क्या है यहाँ पर हमें ये जानने को मिलेगा। And let me explain you. सो इट इज़ अ प्रोसेस जहाँ पर एक सेंडर है और एक रिसीवर है। सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को पास किया। अब वो दो तरीके से पास हो सकता है। इट कुड बी वर्बल और इट कुड बी नॉन वर्बल। सो यू सी स्क्रीन पर एक एग्जाम्पल है आपके लिए। देर आर टू पीपल सिटिंग ऑन अ टेबल एंड दे आर हैविंग देयर मील। सो देर इज दिस वुमन हु सेज योर फूड स्मेल्स डिलिशियस। अभी ये एक सेंडर है, ठीक है। इन्होंने अपना जो मैसेज है वो रिसीवर को बताया या फिर उससे कहा, वर्बली कहा, राइट। नाउ द रिसीवर जो यहाँ पर बैठा है, द ऑपोजिट साइड विच इज अ बॉय, so he says thanks. Now what is, now there is one more thing, the interpretation। मतलब आपको सेंडर ने एक मैसेज दिया है, रिसीवर ने उसे गेन किया या रिसीव किया। नाउ अब उसका कोई मतलब होगा, राइट। सो नाउ उसका मतलब निकला कि उसने कॉम्प्लीमेंट किया या फिर एक तरीके से बोला कि भाई योर फूड स्मेल्स डिलिशियस। एंड नाउ द इंटरप्रिटेशन इज कि might be she want to take a bite of it, right? So now क्या हुआ, उसने बोला thanks, receiver said thanks, and now the person is interpreting that she wants to try a bite, I think. So ये receiver का एक interpretation था। So what happened, there is a communication happened in between, right? So this is very simple to understand. We all know what is communication, but today, in today's session, we are going to learn what is effective communication, right? So I guess with this example we all know that what is a communication. There is a sender, then there's a receiver, and then there's a meaning of the particular message. So this is how communication happens. It could be verbal and it could be non-verbal as well. So let's jump to the next slide and let's see other things. So now let's know the power of communication. So the power of communication we are going to talk about कि ये कितनी पावरफुल है या इसकी कम्युनिकेशन की पावर क्या है, हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं और ये किस किस जगह पर क्या वैल्यू रखती है, right? So if you see on my screen, it says the power of communication lies into, or deviate into these particular sections, which is relationship, value, success, loyalty, customer, right? So I think if you know that हम अपने relatives, friends, families, lovers इन सब से बात करते हैं, so that is a part of communication. Like relationships जो आपके personal है, professional है, वहाँ पे भी एक communication plays a very very major role, which is your relationships. So वहाँ पे भी communication होता है, and there is the power of communication. भाई हमारे parents हैं,
कजिन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, कोई बात हो जाती है या उन्होंने हमें डांट दिया या हमें कोई बात शेयर करनी है, तो व्हाट वी यूज़ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन, राइट? नाउ द पावर ऑफ कम्युनिकेशन कम्स इन वैल्यू। अब किसी भी चीज़ की वैल्यू किस तरह से आप निकाल रहे हो, ये भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट है। यानी कि आपको किसी चीज़ की वैल्यू बतानी है, तो बताने के लिए आपको कोई मोड ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करना पड़ेगा, राइट? So this is how you can take out the value with the help of communication. Now, the third and the most important is the customer. So, people who are going to be in the sales sector or in the marketing sector knows the power of communication when it comes to customer end, when it comes to customer service. So, it's very important because कस्टमर से आप बिना बात किए कुछ भी चीज़ें उन्हें डिलीवर नहीं कर सकते, and that is the reason communication, the power of communication plays a very vital role in it, right? And the second one is the success, the power of communication when it comes to success. सो ना यहाँ पर भी जो सक्सेस को अचीव करने की बात आ रही है वो भी कम्युनिकेशन के थ्रू आ रही है। जब तक आप अपनी कोई ओपिनियन शेयर नहीं करेंगे, जब तक आप अपनी कोई बात नहीं रखेंगे, एंड जब तक आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, यू कैन नॉट गेन सक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। सो यहाँ पे भी जब हम सक्सेस की बात करते हैं तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, राइट? जितने भी हमारे सक्सेसफुल पीपल हैं, यू हैव सीन renowned people in our country all over the globe, what they have a very powerful communication, they have a very charming personality, very renowned personality, and that is the reason they have all the factors in them, and that what makes them a powerful renowned celebrity or a personality, right? The power of communication when it comes to loyalty. लॉयल्टी, यहाँ पर इसका ये मतलब हुआ कि जिस भी तरीके से आप काम कर रहे हैं, जो भी चीज़ आप कर रहे हैं पैशनेटली, जस्ट बी वेरी लॉयल टू इट, राइट? एंड दैट इज़ समथिंग कि हाँ, कम्युनिकेशन में आपको लॉयल्टी भी रखनी है, कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी कम्युनिकेट कर दिया, ऐसा नहीं है। कीप योर कम्युनिकेशन वेरी क्लीन, वेरी प्रिसाइज, एंड दैट इज़ द थिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल, और मे बी जो पावर हमने यहाँ बताई है कम्युनिकेशन की, वो किस किस जगह पर क्या क्या रोल प्ले करती है, हमने इस बारे में यहाँ पे समझा। नाउ लेट्स go to the other slide. So, we are talking about effective communication. Now, let's know what is effective communication. It is a definition, it is a process of exchanging or transmitting ideas, information, thoughts, knowledge, data, opinion, or messages from the sender through a selected method or channel to the purpose that can be understood with clarity. Now, understand the difference communication and effective communication. कम्युनिकेशन सब कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात करना इज़ अ कम्युनिकेशन। तरह तरह का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल, नॉन वर्बल, रिटन, visual. So, communication happens in every direction. But now we are talking about effective communication. Now let's understand what is effective communication. जिस communication में आपका exchange of ideas, exchange of information, exchange of thoughts, knowledge, opinion, data, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसे कहते हैं effective communication. एक communication हो गया नॉर्मली बातचीत करना, और दूसरी कम्युनिकेशन हो गई इफेक्टिव, जो कि कहीं ना कहीं किसी चीज़ का मतलब निकाल रही है, इट हैज़ सम सेंस टू इट, इट हैज़ सम इंफॉर्मेशन टू इट, विच इज़ इफेक्टिव, राइट? सो किसी भी कम्युनिकेशन का अगर कोई मतलब निकल रहा है, it has some meaning to it, it's definitely an effective communication, right? So बेसिकली यही है मतलब कि जो जिस कम्युनिकेशन से आप चीज़ों को समझ पाए, आपका पर्पस सॉल्व हो, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, आप उससे कुछ गेन करें, दैट इज़ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नाउ लेट्स सी what else we have. The process of effective communication, receiver makes both the sender and receiver satisfied.
It is a cyclic process that starts with the sender and also ends with the sender as the sender receives a response or feedback from the receiver. Now, let's simplify it. जो प्रोसेस है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का वो दो एंड से होता है, the sender and the receiver. And in effective communication it is said कि जो कम्युनिकेशन सेंडर और रिसीवर के बीच हो रहा है, इट शुड बी सेटिस्फाइड, इट शुड बी क्लोज्ड इन अ वे कि जहाँ पर कंक्लूजन निकल के सामने आ जाए, सेटिस्फैक्ट्री तरीके से वो कॉन्वर्सेशन आपकी एंड हो गई हो. सो दैट इज बेसिकली एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन. इसका मतलब यही हुआ. नाउ इट इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक क्यों बोला गया है इसे? बिकॉज ये सेंडर से शुरू होती है. सेंडर ने मैसेज रिसीवर को दिया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया, इंटरप्रेट किया, फिर उसे रिवर्ट बैक किया. एंड यहाँ पर सेंडर ने क्या किया, अपना मैसेज देने के बाद उससे रिसीव भी किया. क्या रिसीव किया? रिव्यू रिसीव किया, फीडबैक रिसीव किया. सो यहाँ पर क्या हुआ, सेंडर पे ही शुरू हुआ और सेंडर पे ही खत्म हुई कम्युनिकेशन. सो दिस इज व्हाट इफेक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स बेसिकली, right? For many of us, communicating more clearly and effectively requires learning some important skills. Whether you are trying to improve communication with your spouse, kids, boss, or co-workers, learning these skills can deepen your connections to others, build greater trust and respect, and improve teamwork, problem solvings, and your overall social and emotional health. इन टुडेज़ वर्ल्ड, आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि कम्युनिकेशन करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है. हम हर किसी से बेहतर तरीके से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, हमारे लवर्स हों, हमारे फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कोवर्कर्स हों, टीचर्स हों, राइट? सो वी ऑल वांट कि हमारा कम्युनिकेशन इतना इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि सामने वाले को हमारी बात ईज़िली समझ में आ जाए, राइट? सो इसको करने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं लगते. दिस इज व्हाट इट इज़ बीन यू नो एक्सप्लेन्ड इन दिस पैराग्राफ, कि इसके लिए कोई लर्निंग स्किल्स नहीं लगते. थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं इम्प्रूव करने के लिए, आप कर सकते हो. उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते तो आप सीख भी नहीं सकते. ऐसा नहीं है. देयर इज ऑलवेज अ रूम फॉर लर्निंग. सो it is very important to learn few new things, to understand किस तरीके से ये प्रोसेस काम करता है, क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो टू इम्प्रूव योर पर्सनालिटी, और जिस तरीके से आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो वहाँ पर कम्युनिकेशंस का कितना मेजर रोल है, अब वो किस तरीके से है ताकि आप रिस्पेक्ट जनरेट कर सको, ट्रस्ट बिल्ड कर सको, इम्प्रूव कर सको क्वालिटी अपने काम की, अपने टीम वर्क में अच्छे से काम कर सको, प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, ठीक है? इमोशनली आप कितने ज़्यादा बैलेंस्ड हो, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं. तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इज़ अ वेरी मेजर रोल व्हेन वी टॉक अबाउट पर्सनल डेवलपमेंट. इफेक्टिव कम्युनिकेशन इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, एंड इट कैन ईजिली बी अचीव्ड with few tips and tricks. So now let's learn about the chart that we have spoken about, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में जो मैसेजेस की एक्सचेंज हो रहा है, हाउ इट वर्क्स बेसिकली, हाउ कैन यू मेक योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव, एंड बीइंग एज अ सेंडर, हाउ एंड इन विच वे आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव होना चाहिए रिसीवर के लिए कि उसे ईजिली समझ में आए. तो किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है बीइंग एज अ सेंडर और बीइंग एज अ रिसीवर. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं तो सेंडर और रिसीवर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन चीज़ों पर हम यहाँ बात करेंगे. So as you can see, there is a chart which says sender, message, receiver, and then feedback, and then sender. So it's a cyclic process, right? So let's see what sender should take care of, the points that must be taken care by the sender. So we will read one by one कि किन बातों का ध्यान हमें रखना चाहिए.
सो इट सेज स्टेट वन आइडिया एट अ टाइम। बहुत सिंपल सी बात है कि अपनी बात को क्लियरली रखने के लिए आप अपने किसी एक आइडिया को, यानी कि किसी एक बात को एक समय पे बोलें। बहुत सारी बातों को अगर आप एक साथ बोलेंगे तो क्लटर हो जाएगा। क्लटर एज इन कि कंफ्यूजन क्रिएट होगी, आपका जो मैसेज है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, किसी को समझ नहीं आएगा, लोग बोलेंगे क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ठीक है? तो अपने कम्युनिकेशन को बहुत क्लियर रखने के लिए, प्रिसाइज़ रखने के लिए अ, चीज़ों को वन बाय वन बोलिए। यानी कि सोच समझ के, जो दिमाग में आप सोच रहे हैं, उसी चीज़ को ज़बान पे लाइए और तब बोलिए, थोड़ा-सा सोच समझ के। बहुत सारी चीज़ों को क्लटर करके, एक साथ करके नहीं बोलना है, वरना मैसेज अनक्लियर होता है, समझ नहीं आता। फिर आती है बात स्टेट आइडियाज सिंपली। यानी कि जो आपके आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स या इंफॉर्मेशन आप पास ऑन करना चाहते हैं या सामने वाले को बताना चाहते हैं, इट शुड बी वेरी सिंपल। सिंपल एज इन कि उसकी डिलीवरी बहुत सिंपल तरीके से होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि ये लगे कि सामने वाला बोले भैया क्या बोला, कुछ समझ नहीं आया। हालांकि आपने बस इतना बोला कि मौसम आज खराब है, लेकिन वो इतना कॉम्प्लेक्स हो गया कि आज मौसम इतना था, आज इतना डिग्री सेल्सियस रहा, हवा इतने हिसाब से चली, यहाँ पे वो पेड़ गिरा, ऐसे गिरा। यहाँ पर क्या हुआ ना कि आप जो ये कहना चाहते हैं कि मौसम बस खराब था, मैं बस इतना कहना चाहता था, उस चक्कर में ओवर एक्सप्लेन कर दिया आपने। और वहाँ पर जो रिसीवर था, उसे ये समझ में आया ही नहीं कि आप एक्चुअली में कहना क्या चाहते हो। तो इसीलिए अपने सेंटेंसेस को, अपनी इन्फॉर्मेशन को हमें बहुत सिंपल रखना है, सो दैट जो हमारा रिसीवर है या हमारी ऑडियंस है, अ, उन्हें मैसेज बहुत क्लियर तरीके से मिले। सो इट हैज़ टू बी वेरी सिंपल। नाउ नो योर ऑडियंस। अपनी ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, जिनको आप एड्रेस कर रहे हैं। एड्रेस एज इन, इट कुड बी योर रिसीवर, इट कुड बी अ फ्रेंड, इट कुड बी अ मास ऑडियंस। कोई प्रेजेंटेशन में आप बैठे हैं, 50 से 100 लोग बैठे हैं। सो अपनी ऑडियंस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। किस तरीके की ऑडियंस है, क्या एज ग्रुप है उनका, क्या प्रोफाइल है, क्या चीज़ें वो पसंद करते हैं या किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं। सो डेफिनेटली आपको थोड़ी हेल्प मिलती है अपने कम्युनिकेशन को और इम्प्रूव और अच्छे तरीके से, सरल तरीके से डिलीवर करने में। सो एक्सप्लेन व्हेन अप्रोप्रिएट। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वाई? एक्सप्लेन आपको तभी करना है जब सही समय, सही वक्त और सारी चीज़ें जो भी है वो आपके फेवर में हो। एक्सप्लेन व्हेन अप्रोप्रिएट, कि जब सही लगे आपको, आप सिर्फ तभी एक्सप्लेन करें। ओवर एक्सप्लेन नहीं करना है, बेवजह एक्सप्लेन नहीं करना है किसी बात को, जब तक आपसे पूछा ना जाए या आपसे कहा ना जाए। फ़र्ज़ कीजिए कीजिए कि आपने कोई मैसेज सामने वाले को डिलीवर किया और उसको समझ में आ गया है, उसको समझ में आ चुका है आप क्या बात कर रहे हैं, बट आपने क्या किया कि आपने उसको दोबारा फिर से एक्सप्लेन कर दिया, या फिर आपने कुछ और तरीका अपना के उसे वो चीज़ बताई। तो क्या हुआ कि आपने एक्सप्लेन तो आप कर चुके हैं, उसको समझ भी आ गया है, बट दोबारा करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ पर अगर आपकी कोई बात बन रही होगी या इम्प्रेशन आपका बन रहा होगा, तो वो खराब हो जाएगा। राइट? सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हमें ये थोड़ा सा एनालाइज करना पड़ेगा अपने एंड से, कि हमें कब बोलना है, कब एक्सप्लेन करना है और कब नहीं बोलना है। सो बीइंग एज अ सेंडर, इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर यू टू टेक केयर कि आपको कब चीज़ें और कब इंफॉर्मेशन बतानी है और कब नहीं बतानी है। So repeat if appropriate. Now again, there are two things. पहला क्या था कि एक्सप्लेन करना है जब अप्रोप्रिएट हो, और दूसरा है रिपीट इफ अप्रोप्रिएट। अगर ज़रूरत है सिर्फ तभी बोलिए। जो आपको पहले, मैंने आपको पहले पॉइंट में समझाया, फिर वही बात है, बट यहाँ पे थोड़ी सी एक थिन लाइन है कि अप्रोप्रिएट तो करना है लेकिन सही समय पे। और दूसरा क्या कह रहा है कि बेवजह भी अप्रोप्रिएटली, बेवजह भी आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, ये भी कह रहा है। ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आपका मैसेज जो है वो सामने वाले को अम, समझ में नहीं आया है किसी कारणवश, या
कोई भी डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। तो अगर अप्रोप्रिएट लग रहा है आपको कि इसको दोबारा एक्सप्लेन करना चाहिए, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। मानिए जैसे आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और आप अपने रिसीवर से बात कर रहे हैं और कोई थर्ड पर्सन बीच में इंटरप्ट कर दे, या मान लीजिए कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट कॉल आ जाए आपके रिसीवर को, तो डेफिनेटली दैट पर्सन जो है, जो रिसीवर है, उसको वो चीज़ अटेंड करनी पड़ेगी। एंड देन आपका जो कम्युनिकेशन का एक फ्लो है वो टूटता है। then in that case uh, after the call that person will say कि आप प्लीज़ ज़रा फिर से समझा देंगे मुझे, और आपको पता है कि ये बात कितनी इम्पोर्टेंट है आप दोनों के लिए। तो आप क्या करेंगे कि आपने रीज़न समझा कि हाँ, रीज़न वैलिड था, देर इज़ अ कॉल, अर्जेंट कॉल, तो उठाना था, चीज़ें हुई, कोई थर्ड पर्सन आ गया किसी चीज़ को पूछने के लिए। देन आप अप्रोप्रिएट तरीके से उसको रिपीट कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज व्हाट मीन्स व्हेन इट कम्स टू सेंडर। ठीक है। एनकरेज फीडबैक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं ना, हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं और जल्दी से उसे कंक्लूड करके ख़त्म कर देते हैं। हम फीडबैक का इंतज़ार नहीं करते, या हम फीडबैक को एनकरेज नहीं करते। हम रिसीवर को बोलते नहीं है कि आपको अगर नहीं पसंद आया मेरा कोई आइडिया या मेरी कोई बात, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। वील से हाँ ठीक है, छोड़ो, कोई बात नहीं। बट वी शुड ऑलवेज एनकरेज फीडबैक। फीडबैक से क्या होता है कि आपको पता चलता है कि रिसीवर जो सामने आपके बैठा है या ऑडियंस है, उसको आपकी बात किस हद तक सही लगी, किस हद तक आपके समझ में आई। तो फीडबैक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हमें क्या करना है आगे से कि जब भी हम किसी से बात करें, प्रोफेशनली, पर्सनली, तो बहुत ही आराम से बात करनी है, सोच समझ के बात करनी, इन सारे फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए बात करनी है। इससे क्या होगा, आप इसे जब ट्राई करेंगे इन सारी चीज़ों को, तो आपका जो मैसेज है ना, वो बहुत इफ़ेक्टिव तरीके से सामने कम्युनिकेट होगा और रिसीवर बहुत ईज़िली समझ लेगा, राइट? और उसको एनकरेज करिएगा कि आप फीडबैक दीजिए कि जो भी मेरी आपसे कम्युनिकेशन हुआ, आपको क्या सही लगा, क्या गलत लगा। आपकी ओपिनियन मैटर करती है, योर फीडबैक मैटर्स अ लॉट टू अस। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रख के करेंगे, तो यू आर गोइंग टू बी अ गुड सेंडर, अ गुड पर्सन, अ गुड कम्युनिकेटर, राइट? सो दिस इज़ द पार्ट जो कि सेंडर के एंड से था, जो हमने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया। नाउ लेट्स गो टू मैसेज। अब मैसेज किस तरीके का होना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। सो स्पीक और राइट क्लियरली। आप अपने मैसेज को, मैसेज 2 फॉर्म्स में, 3 फॉर्म्स में, 4 फॉर्म्स में हो सकता है, इट कुड बी, देयर आर मल्टीपल फॉर्म्स बेसिकली। सो यहाँ पर बात की गई है स्पीक और राइट, यानी बोलने की और लिखने की। ठीक है। तो अगर आप अपना कोई मैसेज है उसे लिख के दे रहे हैं, या फिर आप उसे बोल के दे रहे हैं, बोल के कन्वे कर रहे हैं या लिख के कन्वे कर रहे हैं, तो उसका जो टाइप है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। योर मैसेज शुड बी क्लियर। उसमें कोई क्लटर नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होनी चाहिए, बहुत हाई फाई वोकेबलरीज। जब तक कोई सामने वाला आपका रिसीवर, जहाँ पे हमने बात करी नो योर सेंडर, अगर वो बहुत किसी हाई प्रोफाइल का है, तो डेफिनेटली आप वोकेबलरी, अच्छी वोकेबलरी का यूज़ करिए। पर अगर नहीं है, तो बहुत सिंपल भी रख सकते हैं आप। उसको कॉम्प्लेक्स मत करिए बेवजह, राइट? और बहुत क्लियरली बात करना है। अगर ये बताना है कि कोई इन्फॉर्मेशन है बहुत इम्पोर्टेंट, तो बस वही आपने लिख के दिया, कोई उसके ऊपर नीचे बात नहीं करी, बहुत सिंपल तरीके से आपने बता दिया एक लाइन में कि भाई दिस इज़ द मैटर एंड दिस इज़ द इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर क्या हुआ, अगर आपने बोला भी तो बहुत क्लियरली, सॉफ्टली बोला, अपनी इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दी। अगर आपने लिखा भी है, तो लिखने पे भी आपका जो मैसेज है बहुत क्लियर रहा, राइट? नाउ यूज करेक्ट टर्मिनोलॉजी। टर्मिनोलॉजी का मतलब हो गया कि हर एक डिपार्टमेंट के, हर एक ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ जार्गन्स होते हैं। जार्गन्स, टर्मिनोलॉजी आर द वर्ड्स बेसिकली जो कि आपके पर्टिकुलर किसी ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट्स में यूज़ होते हैं। जैसे आईटी सेक्टर में अलग टर्मिनोलॉजी होती है, ऑपरेशंस में अलग होती है, मेडिकल्स में अलग होती है, एविएशन इंडस्ट्री में टर्मिनोलॉजी अलग होती है। तो उनके कुछ वर्ड्स होते हैं ऐसे जो कि कॉमन नहीं होते,
उनके ही डिपार्टमेंट में, उनके ऑर्गेनाइजेशंस में उनकी ये टर्मिनोलॉजी होती है। ठीक है? तो आपको करेक्ट टर्मिनोलॉजी यूज़ करनी है। वो आप कैसे जज करेंगे? जब आपको अपनी ऑडियंस का पता होगा, आपको अपने मैसेज के इन्फॉर्मेशन का पता होगा कि आपका मैसेज किस तरीके का है, तो आप डेफ़िनेटली उस टर्मिनोलॉजी के वर्ड्स को वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? सो यूज अप्रोप्रिएट वोकल टोन एंड वॉल्यूम। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, अगर आप मैसेज भेज रहे हैं या आप बोल रहे हैं, तो यहाँ पर जो आपका वोकल है, जो टोन है, जो वॉल्यूम है, वो बहुत अप्रोप्रिएट होना चाहिए। पहली बात तो आपको आपके मैसेज का मूड मूड पता होना चाहिए। क्या है मूड? एज इन क्या इमोशन है आपके मैसेज के। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके मैसेज का इमोशन हैप्पी है, तो आपका जो टोन है, वॉल्यूम है, इट शुड बी वेरी काम, वेरी सूदिंग एंड वेरी हैप्पी, जॉयफुल होना चाहिए। राइट? अगर वो थोड़ा सा अनॉयड है, अनोइंग सा है आपका जो स्टेटमेंट है या आप जो बोल रहे हैं, तो आपका जो वॉल्यूम और जो टोन है वो भी थोड़ा सा मूड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोवाइडेड कि आप किससे बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी हायर अथॉरिटी से बात करो और आपको किसी बात पे नाराज़गी है या कुछ है, तो आपने उसी टोन का इस्तेमाल कर लिया। कहीं कहीं हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होता है। कुछ चीज़ों में आप एकदम से अग्रेसिव नहीं हो सकते, अनोइंग टोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कभी भी आप जब मैसेज डिलीवर करें, तो मेक श्योर कि आपका जो टोन है, वॉल्यूम है, अ, और जो वोकल है वो बहुत सॉफ्ट हो, अप्रोप्रिएट हो, मतलब उस हिसाब से, मूड के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, लोगों के हिसाब से, इट शुड बी अप्रोप्रिएट। सो नाउ व्हेन कम्स टू कंसीडर योर ऑडियंस, यहाँ हमने सेंडर के बॉक्स में देखा था, यहाँ पे लिखा था नो योर ऑडियंस, यहाँ पे लिखा है कंसीडर योर ऑडियंस। कंसीडर का मतलब हो गया कि उन्हें ध्यान दीजिए, मतलब ध्यान रखिए, उनका भी कंसीडर करना है उन्हें। ऐसा ना हो कि वो अनअटेंडेड फील करें। जो आपकी ऑडियंस है, जो रिसीवर है, उसे ये नहीं लगना चाहिए कि अ, मतलब आपसे बात करने में, या उसको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर अनअटेंडेड सा फील ना करे। कंसीडर करना है अपने मैसेज में, हमें उसको ये चीज़ दिखानी है, जतानी भी है कि वी आर कंसीडरिंग यू, हम आपको कंसीडर करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रेट तरीके से ऑडियंस को अपने रिपोर्ट करते हैं, बट द पॉइंट इज यू मस्ट नो द करेक्ट वे टू कंसिडर योर ऑडियंस। इट कुड बी गुड ग्रीटिंग्स, इट कुड बी गुड सैल्यूटेशंस, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर कि आप किस तरीके से अपने ऑडियंस को कंसिडर कर रहे हैं। सो नाउ लेट्स talk about engage the reader. So now we are talking about engage the reader. एंगेज द रीडर का मतलब हो गया कि आपका मैसेज जो पढ़ रहा है वो रीडर है। सो उसे एंगेज करने के लिए आपका मैसेज इतना अफेक्टिव होना चाहिए, उसमें वर्ड्स का जो यूसेज है या इंफॉर्मेशन का यूसेज है वो इतना अप्रोप्रिएट, इतना प्रिसाइज और एक्यूरेट होना चाहिए कि उसे लगे कि हाँ, देर इज समथिंग इन द मैसेज विच हैज़ सम मीनिंग, विच हैज़ यूजफुलनेस टू इट। तो यहाँ पर आपको अपने रीडर को इस तरह से एंगेज करना है मैसेजेस के थ्रू, जहाँ पर उसका जो अटेंशन है वो आपके मैसेज पे ही हो। तो यहाँ पे आपको अपने कंटेंट को इस तरीके से बिल्ड करना है, मैसेज को इस तरीके से बिल्ड करना है जहाँ पर वो एंगेजिंग हो रीडर के लिए। सो दिस इज द अनदर थिंग यू कैन टेक केयर जब आप मैसेज को सेंड कर रहे हैं। नाउ द लास्ट इज प्रूफ रीड योर मैसेज। अब प्रूफ रीडिंग क्या होती है? प्रूफ रीड इज कि आपने कोई टेक्स्ट लिखा, कोई मैसेज लिखा, कोई कंटेंट लिखा, उसे एक बार दोबारा पढ़िए, प्रूफ रीड करिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है, कुछ मिस तो नहीं हो रहा, कोई इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं बन रही है, वर्ड्स कहीं उल्टे सीधे तो नहीं लिख दिए आपने। बिकॉज व्हाट हैपन्स एट सम टाइम्स कि व्हाट वी थिंक वी वर अनेबल टू राइट इट डाउन। तो हमने सोच तो लिया है, पर जब हम लिखने पे आते हैं तो हम भूल जाते हैं।
तो वहाँ पे अगर आप एक बार अपने मैसेज को प्रूफ रीड कर लेंगे तो वहाँ पर आपका जो मैसेज है वो इफेक्टिव हो जाएगा और उसका पूरा कंप्लीट सेंस बनेगा, राइट। सो अभी हमने पढ़ा सेंडर और मैसेज के बारे में कि अगर बीइंग एज अ सेंडर आपको क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, और यहाँ पर जो मैसेज आप भेज रहे हैं उसके क्या क्राइटेरियाज होने चाहिए कि वो अफेक्टिव लगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट रिसीवर। अब हम रिसीवर के एंड से पता करेंगे या समझेंगे कि मैसेज किस तरीके से होना चाहिए कि रिसीवर तक पहुंचे, ठीक है। इंटरप्रेट द सेंडर्स मैसेज। अब क्या है, बीइंग एज अ रिसीवर, अगर आप एक रिसीवर हैं, आपको मैसेज मिला है, तो आपको सेंडर के जो मैसेज है उसको इंटरप्रेट करना है, ठीक है। उसको समझना है कि क्या मतलब हो सकता है या क्या मीनिंग है इस मैसेज का, इंटरप्रेट करना है, राइट। नाउ वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब रिसीवर हैं आप, तो आपको ये देखना है कि किस तरीके का मैसेज आपको रिसीव हुआ है, वर्बल है या नॉन वर्बल है, राइट। तो एज आई टोल्ड यू, देर आर 4 to 5 ways of communication that happens. So verbal and non-verbal are the main ones. सो इसी को लेके एज अ रिसीवर अगर आप देखेंगे तो आपको डिसाइड करना है कि ये किस तरह का मैसेज है और नॉन वर्बल है कि नॉन वर्बल है। सो बीइंग एज अ रिसीवर यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट थिंग। और इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड्स, नॉलेज, स्किल्स, परसेप्शंस एंड कल्चर। इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस यानी कि जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो एटीट्यूड्स हैं, जो नॉलेज है, जो स्किल्स हैं, परसेप्शंस हैं, कल्चर है, उससे हमें इन्फ्लुएंस होना है एज अ रिसीवर। आप इस चीज़ों को सेंस कर सकते हैं, इन चीज़ों को समझ सकते हैं, राइट। तो इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर एक्सपीरियंसेस मतलब एक मैसेज को समझने का ना एक तरीका होता है, हर एक मैसेज का एक अपना एक सेंस है। तो अगर आपके किसी रिलेटिव, किसी फ्रेंड या किसी टीचर ने आपको कोई मैसेज दिया है और आप एक रिसीवर हैं, तो आप उनके एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आप उनके एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस्ड होंगे, आप अगर कोई टीचर है तो उनके नॉलेज से इन्फ्लुएंस्ड होंगे। सो ये एज अ रिसीवर आप रिसीव करते हैं, राइट। ये आप गेन करते हैं क्योंकि आपको सेंडर ने मैसेज दिया है, एक्स वाई जी, वो कोई भी मैसेज हो सकता है, वर्बल, नॉन वर्बल। So what you have to do, you just have to gain experience out of it, you have to influenced by it, you have to take care, you have to look after it कि क्या मैसेज है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, क्या मतलब हो सकता है, इंटरप्रेट भी करना है, राइट, अंडरस्टैंड करना है। सो ये सारी चीज़ें बीइंग एज अ रिसीवर आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी व्हाट वी हैव इन अ बकेट व्हेन वी टॉक अबाउट फीडबैक। अब क्या हुआ, हमने सेंडर से, हम एज अ सेंडर थे, हमने मैसेज दिया, फिर हमने मैसेज के बारे में पढ़ा, फिर हम रिसीवर बने तो हमने रिसीवर के बारे में पढ़ा। नाउ अब हम फीडबैक के बारे में पढ़ेंगे कि बीइंग एज अ रिसीवर मुझे क्या फीडबैक देना है सेंडर को, तो एक फीडबैक किस तरीके से होना चाहिए, वी विल टॉक अबाउट दैट। सो फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन। अब फीडबैक क्या होता है, एक फाइनल लिंक है उस पर्टिकुलर साइक्लिक प्रोसेस का जो हमने कम्युनिकेशन के बेसिस पे बात करी। तो फीडबैक क्या है कि किसी भी चीज़ के बारे में बातचीत होने के बाद उसका क्या निष्कर्ष निकला, किस तरीके से वो रहा, कंक्लूजन क्या था, क्या फीडबैक रहा, अच्छा था, बुरा था, किस तरीके से था, राइट। सो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। फीडबैक इज द फाइनल लिंक इन द चेन। चेन का फाइनल लिंक होता है फीडबैक, जहाँ पर उसे हम कंक्लूड करके बंद कर देते हैं फीडबैक देने के बाद। Receiver responds in some way and signals that response to the sender. अब रिसीवर क्या करता है, रिस्पॉन्ड करता है इन सम वे एंड सिग्नल्स दैट रिस्पॉन्ड टू द सेंडर। अब रिसीवर का क्या रहता है कि उसको फीडबैक देना है, तो अब क्या होगा कि वो किसी तरीके से या किसी सिग्नल वाइज आपको रिस्पॉन्स देगा, सेंडर को रिस्पॉन्स देगा, इट कुड बी वर्बल, नॉन वर्बल, टू लेट हिम नो कि हाउ वाज द मैसेज, या फीडबैक क्या रहा, राइट। सपोज करिए जेस्चर्स की बात की जाए, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स आते हैं, पीपीटीज आती हैं, इस तरीके की चीज़ें आपकी आती हैं। वी विल टॉक अबाउट इट इन लेटर इन फर्दर, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू इन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर सपोज आपने कोई मैसेज दिया अपने रिसीवर को, रिसीवर ने उसको इंटरप्रेट किया, उसे रिसीव किया, इंटरप्रेट किया, समझा, एंड ही शोज यू अ थम्स अप।
कि हाँ मतलब इट्स ऑल गुड, आई एम ओके विद द इंफॉर्मेशन वट एवर द इंफॉर्मेशन वॉज, आई एम जस्ट टेलिंग यू एन एग्जाम्पल. तो यहाँ पर क्या हुआ कि ही जस्ट गिव्स अ थम्स अप. तो दैट्स मीन कि इट्स अ जेस्चर, इट्स अ नॉन वर्बल जेस्चर, जहाँ पर एक सिग्नल मिला रिसीव सेंडर को कि हाँ ये फीडबैक अच्छा है. तो ये एक फीडबैक की तरह काउंट हुआ कि वट एवर द थिंग वॉज, इट वॉज नाइस, इट वॉज ओके, राइट. सो यहाँ पे रिसीवर ने अपने तरीके से सेंडर को फीडबैक दिया वाया सिग्नल और मे बी सम वे, राइट. स्पोकन कॉमेंट, अ लॉन्ग साई, अ रिटन मैसेज एंड अ स्माइल. सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको समझाया कि जो फीडबैक है वो स्पोकन कमेंट हो सकता है, a long sigh, sigh as in what do I say, it's a kind of a gesture, and a written message and a smile. तो इस तरीके से आप फीडबैक दे सकते हैं. कि आपने लॉन्ग साय दिखाया, रिटन मैसेज आपने लिख दिया, या फिर आपने एक सिंपली सी स्माइल दी. सो दैट्स हाउ द फीडबैक हैपन्स वाया सेंडर. सो व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम हियर कि एक जो साइक्लिक प्रोसेस चल रहा है कम्युनिकेशन का, सेंडर टू रिसीवर एंड देन रिसीवर देन फीडबैक देन सेंडर. यहाँ पे क्या हुआ कि हमने ये समझा कि बीइंग एज अ सेंडर हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, बीइंग जो हम मैसेज भेज रहे हैं उसमें क्या चीज़ें सही होनी चाहिए, एंड सिमिलरली अगर आप एक रिसीवर हो तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है. ऑल्सो ये सारा साइक्लिक प्रोसेस कहाँ ख़त्म होता है, फीडबैक में. सो अगर आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली आपका कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव रहने वाला है, एंड पीपल विल प्रेज यू फॉर योर कम्युनिकेशन, right. So now this particular cyclic process ends over here, and we will see what we have next in our slide. एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा. सो हमने आज इस कोटेशन के बारे में पढ़ा. देन वी लर्न कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, क्या होता है. और ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट था जो आज हमने पढ़ा है. हम डेली बेसिस पे इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे पूरे कोर्स के बारे में. तो प्लीज़ आप लोग परेशान मत होइएगा. तो हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, सेंडर कौन है, रिसीवर क्या है, इंटरप्रेट क्या होता है, मैसेज को इंटरप्रेट करने का मतलब क्या होता है, वर्बल एंड नॉन वर्बल मीनिंग क्या होता है, राइट. फिर हमने पढ़ा द पावर ऑफ कम्युनिकेशन क्या है अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग जगहों पे, राइट. फिर हमने पढ़ा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होती है, किस तरीके से हम अपने मैसेजेस को डिलीवर करें कि वो राइट तरीके से राइट जगह पर पहुँचे. फिर हमने पढ़ा कि किस तरीके से ये एक साइकिल चलती है जहाँ पर सेंडर, मैसेज और हमारा इस तरह का चीज़ें रोटेट करती हैं, और इसी से रिलेटेड हमने बात करी. और हमने पढ़ा कि हम किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं अपने आसपास और हमें पता ही नहीं होता कि कितना इफ़ेक्टिव वो जा रहा है या नहीं जा रहा है. जैसे कि अपने पेरेंट्स से, अपने फ्रेंड्स से, अपने दोस्त यार से हम इस तरीके से बात करते हैं, राइट. और इससे क्या बिल्ड होता है, इससे टीम वर्क बिल्ड होता है, एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है, एक ट्रस्ट बिल्ड होता है. सिमिलरली हमने जैसे आज इस साइकिल के बारे में पढ़ा. बीइंग एज अ सेंडर आपको क्या करना है, बीइंग एज अ मैसेज आपको किन बातों का ध्यान रखना है, और एज अ रिसीवर आपको क्या करना है, फिर आपको फीडबैक देना है सेंडर को. तो ये सारे पॉइंट्स हमने आज कवर किए. एंड वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर टाइम एंड सपोर्ट. एंड आज का सेशन हम यहीं पे फिनिश करते हैं. और जैसे कि आपको पता है कि हमारी वीक में 2 बार लाइव क्लासेस होंगी, विच इज़ ऑन मंडे एंड फ्राइडे. और बाकी जो ऑनलाइन कोर्स है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा आपके पोर्टल पे, जो आपका लॉगिन क्रेडेंशियल्स दिए गए हैं उसके अंडर जब आप जाएंगे लॉगिन करके तो आपको आपके कोर्स विजिबल होंगे. एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आपके जो भी क्वेरीज हों, जो भी आपके क्वेश्चंस हों रिलेटेड टू इंटरव्यू, रिलेटेड टू कम्युनिकेशन और वट एवर, आप लोग जब हम लाइव सेशन करेंगे तो आप लोग प्लीज़ पूछिएगा, बताइएगा, सो दैट मैं जितनी हेल्प कर सकूँगी मैं डेफिनेटली आपसे करूँगी. और हम 2 महीने अभी इस कोर्स में आपके साथ हैं. बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत सी चीज़ें हम सीखेंगे और साथ में आगे बढ़ेंगे. सो दैट्स ऑल माय टाइम.
Thank you so much and have a great time.